کیا درپیش ہے. جیسا 12 پارے میں آیا تھا نا کہ تمہارا انداز بتلا رہا ہے کہ تم نے کوئی بہت بڑی مہم پہ تم جا رہے ہو. فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم لوط جو ہے مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر خنجر کے پتھر برسائیں جن پر آپ کے رب کے پاس سے خاص نشان بھی ہے حد سے گزرنے والوں کے لیے. تو ہم نے جتنے ایماندار تھے نا سب کو وہاں سے علیحدہ کر دیا کہ اب عذاب آنے والا ہے, پتھروں کی بارش ہوگی تو تم یہاں سے چلو. تو کہتے ہیں سارے مومنین کو نکالا اور صحیح 100 وجود مسلمانوں کے ایک گھر کی اور کوئی ہم نے وہاں نہ پایا, یعنی وہاں گھر مسلمانوں کا ایک ہی تھا. تو سارے مومنین کو نکالا اور مسلمانوں کا گھر اس مقام پر ایک تھا, کوئی نہیں تھا. تو معلوم ہوتا ہے ان کو مومن بھی کہا گیا, ان کو مسلم بھی کہا گیا. تو یہ مطلب کہ قرآن و حدیث میں یہ تینوں انداز میں استعمال ہے. مومن الگ معنی میں, مسلم الگ معنی میں, اور مومن مسلم کے معنی میں, مسلم مومن کے معنی میں. اور ایک یہ کہ دونوں میں تداخل ہے, ایک دوسرے کے معنی میں آ گئے تو ہم معنی بھی آ گئے, الگ الگ معنی میں بھی آ گئے. تو یہ تینوں انداز میں نا اس کا قرآن مجید جیسا کہ 26 پارے میں قالت الاعراب آمنا, منافق دیہاتیوں نے کہا ہم آمنا ایمان لے آئے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ سے کہہ دو کہ یہ نہ کہو کہ آمنا, ہاں اتنا کہو کہ اسلمنا, ہم اسلام لے آئے, کیونکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو منافقو لما يدخل الایمان فی قلوبہم, اس لیے اسلمنا تکو کہ ظاہری طور پر نمازیں پڑھنا, یہ شریعت پر منافقت کے رنگ میں عبادتیں کرنا, تو ظاہری اعمال تو تمہارے اندر ہیں لیکن یہ جو اندر کا ایمان ہے تمہارے دل میں وہ داخل نہیں ہوا, اس لیے وہ نہ کو. تو معلوم ہوتا ہے یہاں الگ معنی میں آ گیا یہاں تو. اور یہ جس مقام پر یہ ایک اصول بیان کیا کہ جس مقام پر یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو الگ ہو جاتے ہیں, اور جب یہ الگ ہوتے ہیں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع. یہ ایمان اور اسلام جو ہے نا کل مسکین والفقیر, یہ مسکین اور فقیر کی طرح ہیں. اذا اجتمع, جب دونوں جمع ہوتے ہیں تو جدا ہو جاتے ہیں, اور جب جدا ہوتے ہیں تو جمع ہو جاتے ہیں. معنی کیا؟ معنی یہ کہ جب عبارت میں ایک مقام پر مطلب کہ جب دونوں اکٹھے آ گئے, مسکین کا لفظ بھی آیا, فقیر کا لفظ بھی آیا. انما الصدقات للفقراء والمساکین, یہ فقیر کے لیے بھی زکوٰۃ ہے اور مسکین کے لیے بھی ہے. تو ایک عبارت میں جب دونوں آ گئے نا تو معنی دونوں کا الگ الگ ہو گیا. عبارت میں اکٹھے ہوئے تو معنی الگ ہو گیا. اور جب صرف مسکین کا لفظ بولا جائے کہ میرے پاس ایک مسکین آیا, میرے پاس ایک فقیر آیا, تو فقیر کے معنی میں مسکین بھی آئے گا اور مسکین کے معنی میں فقیر آئے گا. تو جب عبارت میں دونوں کو اکٹھا ذکر کیا جائے تو ان کا معنی الگ الگ ہوگا. تو ان کا اکٹھا ہونا اس کے معنی کو جدا کر دیتا ہے, اور اگر یہ جدا ہوں گی تو معنی میں اکٹھے ہو جائیں گے کہ میرے پاس مسکین آیا تھا تو اس کا معنی وہی کیا جائے گا مسکین اور فقیر دونوں ایک معنی میں آ گئے. تو مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, جسے کہتے ہیں مسکین ذا متربہ, یہ مسکین مٹی والا, کیا مطلب سوائے مٹی کی اور کچھ بھی نہیں. اور فقیر وہ ہے کہ کچھ ہو, یعنی ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہو. تو یہ معنی الگ الگ ہے لیکن اکٹھے بھی ہو گئے, الگ بھی ہو. اسی طرح ایمان اور اسلام جب ایک عبارت میں دونوں اکٹھے آئیں گے نا کہ مومنین کے لیے یہ ہے, مسلمانوں کے لیے بھی ہے, ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, عبارت میں دونوں جمع ہو گئے جیسا 22 پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں. تو جب جمع ہوئے تو معنی الگ ہو گیا, اور جب الگ ہوئے تو معنی ان کا اکٹھا ہو گیا. بہرحال یہ طالب علمانہ ایک بات آپ کے سامنے ذرا آ گئی. تو یہاں ان مقام کو مسلمان بھی کہا تو مومنین بھی, لیکن سوائے ایک بیت کے مسلمانوں کی ہمیں نہ پایا. اور ہم نے اس واقعے میں ایسے لوگوں کے لیے عبرت رہنے دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. اور موسیٰ کے قصہ میں بھی عبرت ہے, جبکہ ہم نے ان کو فرعون کے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل دے کر کے بھیجا. سو اس نے اپنے ارکان سلطنت کو سرتابی کی اور کہنے لگا یہ توبہ توبہ, یہ تو جادوگر ہے, یہ تو مجنون ہے نبی. سو ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ کر کے دریا میں
लिया और उसने काम ही मलामत का किया था। और आज के किस्से में भी इबरत है, जबकि हमने उन पर नाम मुबारक यानी बरकतों वाली नहीं यानी नाम मुबारक आती भेजी। जिस चीज पर गुजरती थी अल्लाह अकबर उसको ऐसा छोड़ती थी जैसा कोई चीज कर कर रेजा रेजा हो जाती है। और समूद के किस्से में भी इबरत है, जबकि उनसे कहा गया और थोड़े दिनों चैन कर लो, सो इन लोगों ने अपने रब के हुक्म से सरकशी की, सो इनको अजाब ने आ लिया और वो देख रहे थे तो इन पर फतेह सो न तो खड़े ही हो सके न बदले ही ले सके। और इनसे पहले कौम नूह का यही हाल हो चुका है, वो बड़े नाफरमान लोग थे। और हमने आसमान को कुदरत से बनाया, हम वसीउल कुदरत है, और हमने जमीन को फर्श बनाया, सो हम अच्छे बिछाने वाले। हमने हर चीज को दो दो किस्म का बनाया ताकि तुम समझो, तो तुम अल्लाह की तरफ दौड़ो। मैं तुम्हारे वास्ते अल्लाह की तरफ से खुला डराने वाला हूँ, और खुदा के साथ कोई और माबूद मत करार दो, मैं तुम्हारे वास्ते अल्लाह की तरफ से खुला डराने वाला हूँ। इसी तरह जो लोग उनसे पहले हो गुजरे हैं उनके पास कोई पैगंबर ऐसा नहीं आया जिसको इन्होंने साहिर या मजनून न कहा हो। तौबा तौबा, क्या इस बात की एक दूसरे को वसीयत करते चले आए थे, बल्कि ये सब के सब सरकश लोग हैं। सो आप इनकी तरफ इल्तिफात न कीजिए, क्योंकि आप पर किसी तरह का इल्जाम नहीं कि ये ईमान क्यों नहीं लाए, और समझाते रहिए, क्योंकि समझाना ईमान वालों को नफा देगा। और मैंने जिन और इंसान को इसी वास्ते पैदा किया है कि मेरी इबादत किया करें। अल्लाह ताला ने जहाँ आम तौर पर जिन्नात का फबी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो जिन का जिक्र अल्लाह पहले करते हैं कि इंसान का जिक्र, क्योंकि जिन्नात पहले से मौजूद है, इनकी उम्र ज्यादा है और पहले से मौजूद है, इसलिए इनका जिक्र पहले किया। मैंने जिन और इंसान को इसी वास्ते पैदा किया कि मेरी इबादत किया करें। मैं इनसे रिज़्क़ और रसानी की दरख्वास्त नहीं करता, मैं इनसे रिज़्क़ नहीं चाहता, ना मैं ये चाहता हूँ कि मुझे खिलाएं, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे। तो दो जुमले के माना अलग अलग हो ये बेहतर है, या एक ही माना हो तो ताकीद से तासीस बेहतर होती है कि माना अलग अलग हो। तो अगर ये कह दी ना मैं इनसे रिज़्क़ नहीं चाहता, क्या माना कि मुझे रिज़्क़ दें, तो अगले जुमले का माना भी क्या हो गया कि मैं इनसे ये नहीं चाहता कि मुझे खिलाएं, तो बात एक ही हो गई ना। मैं इनसे रिज़्क़ नहीं चाहता, मैं रिज़्क़ नहीं चाहता, तो माना क्या बन गया कि मुझे रिज़्क़ दे। ना मैं ये चाहता हूँ तो रिज़्क़ तो होता ही खाने के लिए, ना या मैं चाहता हूँ कि मुझे खिलाएं, तो दोनों जुमलों का माना एक ही बना, नया माना नहीं बना। इसलिए तासीसी माना क्या बनेगा, मैंने इनको पैदा किया है, मैंने पैदा किया है सिर्फ इबादत के लिए, यानी पैदाइश का मकसद हयात सिर्फ इबादत है। लेकिन इबादत तब होगी जब बदन में कुव्वत होगी, और बदन में कुव्वत तब होगी जब खाना खाएगा, और खाना तब खाएगा कि जब आटा और रोटी मिलेगी। आटा और रोटी तब मिलेगी जब मतलब कि जमीन में गंदम बोएगा और उसमें हल चलाएगा, उसे पानी लगाएगा। तो सारी बातें आई इसलिए ताकि बदन में कुव्वत आए, और कुव्वत आए तो इबादत करे। तो सारी बातें ज़रिया बन गई, लेकिन पैदाइश का मकसद ये नहीं कि दुनिया में लग जाए, जरूरी है, फर्ज है, कसब हलाल फरीजा है। फर्ज होना और चीज है, मकसद हयात होना और चीज है। मकसद हयात सिर्फ मेरी इबादत है, और इबादत बगैर इसके हो नहीं सकती। इबादत बगैर इसके नहीं हो सकती कि कुव्वत आए, और कुव्वत के लिए रिज़्क़ हलाल कमाना, मुलाजमत करना, जॉब करना, फिर वो फरीजा बन गया। तो वो एक वास्ता है, चाहे फर्ज हो, लेकिन जरिया है, असल मकसूद। तो माना क्या बना कि मैंने इनसे रिज़्क़ नहीं चाहा, यानी पैदा इसलिए नहीं किया कि रिज़्क़ कमाए, मैंने इनसे रिज़्क़ इनके लिए, यानी मैंने नहीं चाहा कि अपने लिए रिज़्क़ कमाए। पैदा मैंने इसलिए नहीं किया, ना इसलिए किया कि मुझे खिलाए, ना इसलिए कि अपने लिए करे, ना ये कि मुझे। मैंने तो सिर्फ इबादत के लिए बनाया है कि मेरे गुलाम बन जाए और इबादत करे, मुकम्मल दीनदार बने, पांचों शोबों में, अकायद में, इबादत में, मुआमलात में, मुआशरात में, अखलाक में, पांचों शोबों में मेरी बंदगी इख्तियार करे। मैंने पैदा ये किया,
تو یہ مانا ہے اللہ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والے تو خود ہے، قوت والا، نہایت جو قوت والا۔ تو ان ظالموں کی بھی باری ہے، جیسے ان کے ہم مشرقوں کے پہلے باری تھی، سو مجھ سے جلدی طلب نہ کریں یعنی عذاب، اور ان کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سورہ طور مکیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس پہاڑ کا ذکر ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے شرف کلام ہو، کہتا قسم ہے طور پہاڑ کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہے یعنی تورات، اور بیت المعمور کی اور اونچی چھت کی اور دریائے شور کی جو پر ہے کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر کے رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ جس روز آسمان تھر تھر آنے لگے گا، پہاڑ ہٹ جائیں گے، تو جو لوگ جھٹلانے والے ہیں، جو مشغلہ میں بےہودگی کے ساتھ لگ رہے ہیں، ان کی اس روز بڑی کمبختی آئے گی، جس روز کے ان کو آتش دوزخ کی طرف دھکے دے دے کر کے لائیں گے۔ توبہ یا اللہ، تو کس کا دل چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں اور دھکے دے دے کر کے جہنم کے کر لایا جائے گا؟ یہ وہی دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے جو تم کہتے ہو دیکھو یہ جہنم جادو ہے، یا یہ کہ تم کو نظر نہیں آ رہا اس میں داخل ہو پھر خاص صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، جیسا تم کرتے تھے ویسے ہی بدلہ تو دیا گیا۔ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ تو متقی لوگ بلا شبہ باغوں اور سامان عیش میں ہوں گے، ان کو جو چیزیں ان کے پروردگار نے دی ہوں گی اس سے خوش دل ہوں گے، اور ان کا پروردگار ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ حکم ہوگا خوب کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ اپنے عملوں کے بدلے میں۔ اب یہ بھی فکر نہیں کہ مطلب یہ کہ تم اگر کھاؤ گے نا تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آج رات کی جگہ دعوت تھی، میں وہاں پر گیا تراویح کے بعد، تو دعوت تھی تو وہاں پر جانا ہوا، تو طبیعت ذرا شکل تھا، تو میں صبح ایک پراٹھا کھاتا ہوں، تو میں نے آج پراٹھا نہیں کھایا، لیکن طبیعت پہ ذرا بوجھ تھا۔ لیکن وہاں جنت میں یہ نہیں ہوگا کہ مطلب کہ تم مطلب کہ اس مقام پر کھاؤ تو بوجھ ہو جائے گا۔ ایک ڈکار آئے گا اور ڈکار میں مشکوں کی خوشبو آئے گی اور سارا کھانا ہضم، تو جتنا دل چاہتا ہے مزے سے خوب کھاؤ اور مزے سے۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ توبہ ہم تب کریں گے کباب و شراب سے، قرآن میں جو آیا کلو و شربو نہ ہو، قرآن کہتا ہے خوب کھاؤ اور پیو، تو ہم کباب اور شراب سے توبہ کیوں کریں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کھاؤ پیو کھاؤ، تو توبہ ہم تب کریں گے کباب و شراب سے، قرآن میں جو آیا کلو و شربو نہ ہو۔ تو آگے حضرت جواب دیتے ہیں شیر کا، کہتے ہیں تسلیم قول آپ کا ہم تب کریں جناب جب آگے وشربو کے ولا تصرفو نہ ہو۔ تو 8ویں پارے میں آتا ہے نا کلو وشربو ولا تصرفو، تسلیم قول آپ کا ہم تب کریں جناب جب آگے وشربو کے ولا تصرفو نہ ہو، تو خوب کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ اپنے عملوں کے بدلے میں، تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے۔ یعنی جنت بھی کیسی چیز ہے نا، تو بڑے بڑے پیٹو بھی ہوتے ہیں نا، ان کے لیے کھانوں کی نعمتوں کا ذکر کیا جو آگے سورہ رحمان میں یا سورہ واقعہ میں آتا ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے، نعمتوں کا ذکر کیا۔ لیکن عاشق مزاج بھی ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے بیویاں اس رنگ میں بیان کی، اللہ نے کسی نعمت کو ان کے لیے چھوڑا نہیں، اور جو نعمت کے ذکر کو چھوڑ دیا، مثلا جیسے آم کا ذکر نہیں آیا یا اور چیز کا ذکر نہیں آیا، یہ تو پھل تو پھلوں کا سردار ہے، اس کا ذکر نہیں آیا، تو اس ایک لفظ میں ساری نعمتیں آ گئی کہ جنتی جو چاہے گا وہ ملے گا اور جو مانگے گا وہ، تو ساری باتیں اسی کے اندر آ گئی۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کا نکاح کر دیں گے ایسی بڑی بڑی آنکھوں والی سے اور بڑی گوریوں سے، اور جو لوگ ایمان لائے، یہ ایک بڑی مرکزی آیت ہے نسبت کی، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا، کافر نہ ہو، ذریت مومن ہو کافر نہ ہو، تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ الحقنا ملحق کر دیں گے، اور
उनके अमल में कमी नहीं करेंगे। बड़ों के अमल में वमा अलतना हूँ, तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ुर्रियत होने की बिना पर उस जन्नत में जाएंगी जहाँ सरकार है। तो सरकार को जो जन्नत मिलेगी वो तो किसी नबी को भी नहीं मिलेगी। तो फजीलत जुज़ी के तौर पर अल्लाह ताला ने ये मकाम सैयदा को दिया। तो ये इसका मैंने हवाला दिया था ना, कहते हैं और हम इनके अमल में कोई चीज कमी नहीं करेंगे, इन्हीं को वहां ले जाएंगे। हर शख्स अपने अमाल में यदि महबूस होगा बना हो, और हम उनको मेवे और गोश्त जिस किस्म का उनको मरगूब होगा वो रोज उसको देते जाएंगे। और वहाँ आपस में ये खेलेंगे भी, जिंदा दिलियां भी करेंगे, छीना झपटी भी करेंगे। तो बर्तन छीन रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, मतलब ये कि ये नहीं कि वहां जाकर बिल्कुल सूफी बन के बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं है। मतलब कि आपस में खेलना एक दूसरे के मतलब ये, तो वहाँ आपस में जाम शराब भी छीना झपटी करेंगे कि इसमें न बकबक लगेगी और न कोई बेहुदा बात होगी। मैं जब दारुल देवबंद गया ना तो क़ारी मुतय्यसर रहमतुल्लाह अलैह वो अपने घर के हुसैन के अंदर ना बैडमिंटन खेल रहे थे। तो मैं भी साथ शरीक हो गया। मैंने कहा हजरत मैं भी साथ शरीक होगा। तो हजरत अब देखो ना कितनी बड़ी हस्ती और बैडमिंटन ये खेल रही। तो मतलब कि ये इन चीजों को शरीयत मना तो ही ना करती। और आगे मतलब कोई बेहुदा बात होगी न वहाँ उनको, उनके पास ऐसे लड़के आएंगे मतलब कि साफ सुथरे बर्तन लाने। अब देखो ना बर्तन लाने वाले अगर मैले को चाले हों तो वो नहीं होगा। तो बड़े होटलों में आप देखा ना बड़े पढ़े लिखे मतलब के मुलाजमों को रखा जाता है ताकि बड़े सलीके से लेकर के आए और साफ सुथरे होंगे। तो खास इनके लिए होंगे, इनकी खिदमत के लिए वो हिफाजत से रखे हुए जैसे मोती है ना इस अंदाज में, और वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर बातचीत करेंगे। ये भी कहेंगे कि हम तो इससे पहले अपने घर बहुत डरा करते थे, तो खुदा ने हम पर तो बड़ा ही एहसान किया, हमको अज़ाब दोज़ख से बचा लिया। हम इससे पहले उससे दुआएं मांगा करते थे। वाकई अल्लाह ताला बड़ा ही मोहसिन और बड़ा ही मेहरबान है। तो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका काम है नसीहत करते जाएं, तो आप समझाते रहिए, क्योंकि आप अपने रब के फजल से चाहे ये जो मर्जी कहते जाए, अपने रब के फजल से ना तो जादूगर है न मजनून है। तो हाँ ये लोग जो हैं ये कहते हैं कि ये शायर हैं, अब इनके बारे में हादसा मौत का इंतजार कर रहे हैं। आप फरमा दीजिए तुम मुंतजर रहो, तो मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजर हूँ। क्या इनकी अक्लें उनको इन बातों की तालीम करती हैं, या ये है कि ये शरीर लोग हैं? हाँ, क्या वो ये कहते हैं कि इन्होंने इसको खुद कर लिया है, बल्कि ये लोग तस्दीक नहीं करते। तो ये लोग इस तरह का कोई कलाम ले आए, इस तरह का कोई एक सूरत एक आए, अगर ये सच्चे हैं तो क्या ये लोग बिदून किसी खालिक से खुद पैदा हो गए हैं, या ये खुद अपने खालिक हैं, या इन्होंने आसमान और जमीन को इन्होंने पैदा किया? बल्कि ये लोग यकीन नहीं लाते। क्या इन लोगों के पास तुम्हारे रब के खजाने हैं, या ये लोग हाकिम हैं? क्या इनके पास कोई सीढ़ी है कि उस पर यदि बातें सुन लिया करते हैं तो इनमें जो बातें सुन आता हो वो कोई साफ दलील पेश करे? क्या खुदा के लिए तो बेटियां हैं, अब लात है, मनात है, उज्जा है, ये सारी बेटियां औरतों के नाम है। अब खुदा के लिए तो बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे, और मलाइका को भी जैसे खुदा वालों ने खुदा की बेटियां करार दिया। तो क्या आप इनसे कुछ मुआवजा मांगते हैं कि वो तवान इनको गरा मालूम होता है? क्या इनके पास गैब है कि ये लिख लिया करते हैं? क्या ये लोग कुछ बड़ाई करने का इरादा रखते हैं? सो ये काफिर खुद ही है जी ये बड़ाई में ये बुराई, क्या ये कुछ बुराई करने का इरादा रखते हैं, कैद और मकर का इरादा रखते हैं? ये लोग खुद ही बुराई में गिरफ्तार होंगे। क्या इनका अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? अल्लाह ताला इनके शिर्क से पाक है। और अगर वो आसमान के टुकड़े देख ले कि गिरता हुआ आ रहा है तो यूं कह देंगे ये तो तय बता जमा हुआ बादल है। तो इनको रहने दीजिए यहाँ तक कि इनको अपने उस दिन से साबका हो जिसमें इनके होश उड़ जाएंगे, जिस दिन इनकी तदबीरें इनके कुछ भी काम न आएंगी, न इनको मदद मिलेगी। और इन जालिमों के लिए कबल इसके भी अजाब होने वाला है, लेकिन इनमें अक्सर को मालूम नहीं। आप अपने रब की तजवीज पर सब्र से बैठे रहिए, आप हमारी हिफाजत में है। सुभान अल्लाह। और उठते वक्त अपने रब की तस्बीह और तहमीद में लगे रहे। सुभान
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیجیے اور ستاروں سے پیچھے بھی اس کی تسبیح کیجیے۔ اور آگے سورہ نجم مکیہ ہے تو اللہ تعالیٰ ماتے ہیں ستارہ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 اعتبار سے معصوم ہے، علمی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، کلام کے طور پر بھی، نگاہ کے طور پر بھی، اور اسی انداز میں دل کے طور پر بھی۔ تو 5 کا ذکر یہاں آ گیا تو نجم دلیل ہے۔ تو جس طرح نجم کے لیے ایک راہ متعین ہے، محور اور مدار متعین ہے، اس کے چلنے میں غلطی نہیں کرتا، تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ کلام میں، نہ نگاہ میں، نہ دل میں یہ غلطی کرنے سے معصوم ہے، جن کا ذکر آگے آ گیا۔ اور یہ ستارہ گواہ ہے کہ یہ معصوم ہے، اور ستارہ کبھی اوپر گیا کبھی نیچے آیا۔ اسی طرح کے سدرۃ المنتہا تک جانے کا ذکر آ رہا ہے، تو اشارہ کیا کیا کہ جس طرح ظاہری ستارے کو کبھی اوپر لے جاتے ہیں کبھی نیچے لے آتے ہیں، اسی طرح ہمارا روحانی ستارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہا اوپر لے گئے اور جب چاہا ان کو نیچے لے آئے، جب چاہا تو آگے دونوں کا جوڑ لگ رہا ہے۔ قسم ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، جب ستارہ غروب ہوا تو یہ بحث پہلے آپ کے وہ ذکر آ گئی تھی 7ویں پارے کے اندر، جب غروب ہو گیا تو مستور ہو گیا، مستور ہو گیا تو محجوب ہو گیا، جب محجوب ہو گیا تو مقہور ہو گیا، اور مقہور ہو گیا تو مغلوب ہو گیا، اور جب مغلوب ہو گیا تو غالب نہ رہا تو خدا نہ رہا۔ اے ستاروں اور چاند کی پوجا کرنے والوں، یہ خدا نہیں، یہ خدا، یہ بحث پہلے اس رنگ میں آئی تھی۔ کہتے ہیں کہ قسم ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے کہ تمہارے ساتھ ہیں، تو اس میں رسالت کا ذکر بھی آ گیا، توحید کا ذکر بھی آیا۔ تو ستارے کے غروب ہونے کا جب ذکر آیا تو مسئلہ توحید آ گیا، اور آگے عصمت کا ذکر آیا تو مسئلہ رسالت کا ذکر آ گیا۔ یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے اتنے 40 برس تمہارے ساتھ مکہ میں رہے، تم نے بچپن دیکھا، نوجوانی دیکھی، اب ان کی داڑھی کے بال میں کوئی سفید بال آنے لگے، اب آ کر کے یہ تو دنیا کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اب آ کر خدا کے معاملے میں یہ جھوٹ بولیں گے۔ افلا تعقلون، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا، تمہاری عقلوں کو، یہ پہلے آ چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے نہ راستے سے بھٹکے، نہ علمی غلطی کی، وہ ماں غوا، نہ عملی غلطی کی، وہ ماں ینتقو، یہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں نہیں کرتے، نہ کلامی غلطی کی۔ اس کا ارشاد میری وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے، ان کو ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور ہے، یعنی تعلیم کا ذریعہ بنتا ہے۔ تعلیم کا کیا بنتا ہے؟ تعلیم کا ذریعہ۔ جبرائیل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں، یہ معتزلہ تو استاد مانتے ہیں لیکن ہم نہیں۔ جیسے ایک ڈاک لانے والا ڈاک لاتا ہے نا، تو ڈاکیا ذریعہ تو بن گیا اس علم کے پہنچانے کا، لیکن وہ استاد تو نہیں نہ بنا۔ اسی طرح جبرائیل امین سرکار کے استاد نہیں، اللہ اور ان تک آنے کا ایک واسطہ ہے۔ ان تک آنے کا کیا ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ان کو ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور ہے، پیدائشی طور پہ طاقتور ہے، پھر وہ فرشتہ اصلی صورت پر نمودار ہوا۔ کہتے ہیں ایسی حالت میں کہ بلند کنارے پر تھا، پھر وہ فرشتہ اور نزدیک آیا، پھر اور نزدیک آیا، سو 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، پھر اور بھی کم، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ پر وحی نازل فرمائی، یعنی کوئی واسطہ درمیان میں نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ اور سرکار دو عالم ہے جی، جو کچھ نازل فرمانا تھا دل نے اسی میں کوئی غلطی نہیں کی، تو دل نے بھی غلطی نہیں کی، اور ما زاغل بصر آگے آ رہا ہے، نگاہ نے بھی غلطی نہیں کی۔ تو کیا ان سے ان کی دیکھی ہوئی چیز کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ اور انہوں نے اس فرشتہ کو ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے قریب جنت المأویٰ ہے، تو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا اصلی شکل میں، وہاں پر بھی گئے اور وہاں ساتھ چھوڑا۔ جب ساتھ چھوڑا تو اے جبریل کیا ہو گیا، اب آگے کیوں نہیں چل رہے؟ اے حبیب خدا، اب سدرۃ المنتہا سے ایک بال کی مقدار بھی آگے جاؤں گا نا تو میں چل جاؤں گا میرے مقام کی جہاں انتہا ہے، اگرچہ میں نوریوں کا سردار ہوں۔ میں نوریوں کا کیا ہوں؟
सरदार हूँ, तो मेरे मकाम की जहाँ इंतहा है आपके मकाम की वहाँ से इब्तिदा है, आपके मकाम की वहाँ से। ये नूरियों का सरदार ये कह रहे हैं, समझे क्या नहीं? कहते करीब जन्नतुल मावा है, कहते हैं इसके करीब जन्नतुल मावा है। जब उस सिदरतुल मुंतहा को लिपट रही थी, जो चीजें लिपट रही थी, यानी मलाइका जी सोने की चिड़ियों की तरह उस पर वो थे, और निगाह न तो हटी वहां से और न बढ़ी, नहीं गलती, निगाह ने भी गलती नहीं की। इन्होंने अपने परवरदिगार के बड़े बड़े अजायबात देखे, तो भला तुमने समझे कि लात और उज्जा और एक तीसरे मनात के हाल में गौर भी किया? क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हो, खुदा के लिए ये बेटियां? इस हालत में तो ये बहुत ही बेढंगी तकसीम हुई ना। ये मेरे नाम ही नाम है, इनको तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने ठहरा लिया है। खुदा ताला ने तो उनकी कोई दलील नहीं भेजी कि लोग सिर्फ बेअसल ख्यालात पर जन के, मैंने कहा था ना माना चार किस्म के आते हैं, तीसरे पारे आखिरी रुकू में कहा था चार माना में आते हैं, कभी अटकर के माने में, वो माने यकीन नंबर 2 के माना के अंदर, और कभी यकीन के माने के अंदर। तो ये हदीस को जब कहा जाता है ना आमतौर पर खबर वायद है, तो जन्ने गालिब, और जन्ने गालिब यकीन नंबर 2, यकीन नंबर। और जो हदीस मुतवातिर होती है वो तो बिल्कुल यकीनी है। वो क्या है? बिल्कुल यकीन नहीं है। कहते ख्वाहिश पर चल रहे हैं, हालांकि इनके पास उनके रब की जानिब से हिदायत आ चुकी है। क्या इंसान को इसकी हर तमन्ना मिल जाती है? तो खुदाई के इख्तियार में है। आखिरत और दुनिया, बहुत से फरिश्ते आसमानों में मौजूद हैं, उनकी सिफारिश जरा भी काम नहीं आ सकती, मगर बाद इसके अल्लाह ताला ने जिसके लिए चाहे इजाजत दे दे और राजी हो। तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, वो फरिश्तों को बेटी के नाम से नामजद करते हैं, जैसे खुदा वालों का जिक्र आया था। हालांकि उनके पास उन पर कोई दलील नहीं, सिर्फ बेअसल ख्यालात पे चल रहे हैं। तो जन के माने यहाँ बेअसल ख्यालात है, और यकीनन बेअसल ख्यालात अमरे हक में जरा भी मुफीद नहीं। तो आप ऐसे शख्स से अपना ख्याल हटा लीजिए जो हमारी नसीहत का ख्याल न करे, और वजूद दुनियावी जिंदगी के इसको कोई मकसूद ही नहीं। ये इनका मबलग इल्म है, इनके इल्म की रसाई पहुंचना ये दुनिया ही है। इनका मबलग इल्म सिर्फ दुनिया है। तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है कि कौन उसके रास्ता से भटका हुआ है, और उसको खूब जानता है जो राह राज पर है। और जो कुछ आसमान और जमीन में है वो सब अल्लाह ही के इख्तियार में है। अंजाम कार यह है कि हजी आगे फरमाते हैं कि बुरा काम करने वालों को उनके काम के एवज में जजा देगा, और नेक काम करने वालों को उनके नेक कामों के एवज में जजा देगा। वो लोग ऐसे हैं, अल्लाह हमें ऐसा ही बना दे कि जो कबीरा गुनाहों से और बेहयाई की बातों से बचते हैं। मगर हल्के हल्के जो गुनाह होते हैं ना, अल्लाह कहते हैं वो तो मैं भी जानता हूँ ना कि हल्के तो हो ही जाते हैं। तो बिलाशुबा आपके रब की मग़फ़िरत बड़ी वसी है। और 5वें पारे में आया था ना कि तुम बड़ों बड़ों से बच जाओ, तो बड़ों के बचने की बरकत से मैं छोटे माफ कर दूं। इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, तुम कबाइर से बच जाओ, उसके बचने से मैं सगायर माफ कर दूंगा। और आगे मते मग़फ़िरत बड़ी वसी है, और तुमको खूब जानता है। जब तुमको जमीन से पैदा किया था और जब तुम अपनी माओ के पेट में बच्चे थे, तो तुम अपने को ज्यादा मुकद्दस न समझा करो, अपनी बड़ाई न बयान किया करो। मैं बड़ा मुज़क्का मुसफ़ा मुजल्ला, मेरा मकाम ही है। तकवा वालों को कोई खूब जानता है, जो तकवे में बढ़ गया वो बढ़ गया। तो भला आपने ये वलीद इब्न मुगीरा है ना, एक दफे अपने साथी से कहने लगे ये वलीद इब्न मुगीरा ईमान ले आया। वलीद इब्न मुगीरा ईमान है, तो साथी ने कहा भी क्यों ईमान लाए? कभी मुझे डर लगता है कि कहीं जहन्नम में न चले जाऊं, डर लगता है कि जहन्नम में। उन्होंने कहा, साथी ने कहता अच्छा फिर ऐसा कर कि अगर तेरा जहन्नम में जाना हुआ ना, तो चलो मैं जिम्मेदारी लेते हूँ कि तेरी जगह पर जहन्नम में मैं चले जाऊंगा, तेरी जगह पर। लेकिन इस पर जाहिर बात है कि तेरी जगह पर जो जहन्नम में जानी होगा तो मुझे कुछ पैसा तो देना चाहिए, मुझे महंगा। उन्होंने एक माल की मिकदार मुकर्रर की, और मुकर्रर करने के बाद फिर किस्तों में मैं दूंगा। तो पहले 1-2 किस्तें दी, तो फिर वो रुक गया, किस्तें वो रोक ली, और बाद में माल दी। उसका जिक्र अल्लाह ताला ये फरमाना चाहते हैं, कहते हैं आपने ऐसे शख्स को भी
देखा जिसने रूगर्दानी की, यानी वलीद बिन मुगीरा और थोड़ा माल दिया और बंद कर दिया। क्या इस शख्स के पास इल्म गैब है कि इसको देख रहा है? क्या इसको मजमून की खबर नहीं जो मूसा के सहीफों में है और नीयत इब्राहिम के जिन्होंने अहकाम की पूरी बजा आवरी की? ये कि कोई शख्स किसी का गुनाह ऊपर अपने ऊपर नहीं ले सकता, समझेगा नहीं। और ये कि इंसान को सिर्फ अपनी कमाई मिलेगी और ये कि इंसान की सही बहुत जल्द देखी जाएगी। तो इंसान को अपनी ही कमाई मिलेगी ईमान में और अकायद, किसमें? ईमान में। और बाकी जो नेक अमाल है ना, उन नेक अमाल में अब्बा के अमल अगर बड़े हैं, बड़े ज्यादा है, ईमान का टिकट, जन्नत का टिकट बेटे के पास है, तो उन अब्बा की कमाई, उनके अमाल जो है बेटे को भी काम दे जाएंगे, बेटे को भी। और ये जो जिक्र है कि अगर ईमान कोई न लाए बेटा, तो बाप का ईमान लाना बेटे के लिए काम नहीं देगा, ये अकायद के द्वारा। और ये कि इंसान की सही बहुत जल्द देखी जाएगी, फिर इसको पूरा बदला दिया जाएगा। और ये कि आपके परवरदिगारी के पास पहुंचना है, ये कि वही हंसाता है, वही रुलाता है, ये कि वही मारता है, वही जिंदा करता है, ये कि वही दोनों किस्म यानी नर और मादा को नुत्फा से बनाता है जब डाला जाता है। और ये कि दोबारा पैदा करना उसके जिम्मे है। और ये कि वही गनी करता है और सरमाया बाकी रखता है, ये कि वही मालिक का सितारा शेरा का। और ये कि उसने कदीम कौम आद को हलाक किया, समूद को भी किसी को बाकी नहीं छोड़ा। और उनसे पहले कौम नूह को बेशक वो सबसे बढ़कर जालिम और शरीर थे, और उल्टी बस्तियों को भी फेंक मारा था। फिर उन बस्तियों को घेर लिया, जिसने घेर लिया फबिअय्यि आलाइ रब्बिका ततमारा, सो तू अपने रब की कौन कौन सी नेमत में शक करता रहेगा। ये भी पहले पैगंबरों की तरह एक पैगंबर है, वो जल्दी आने वाली चीज करीब आ पहुंची, कोई गैरुल्लाह उसका हटाने वाला नहीं। सो क्या तुम लोग इस कलाम से ताज्जुब करते हो और हंसते हो और रोते नहीं हो, और तुम तकब्बुर करते हो? सो अल्लाह की इताअत करो और इबादत करो। मतलब रोते हुए सजदे में गिर जाओ, आयत सजदा आ गई। और आगे सूरह कमर, ये मक्किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफार ने सवाल किया था, आप कोई हमें मोइज़ा दिखलाए, जो आपका दिल चाहे मोइज़ा दिखलाए। तो सरकार ने उनका मांगा हुआ मोइज़ा नहीं, सरकार ने कहा अगर ये चांद जिसको तुम देख रहे हो, मैं अपनी मुसब्बिहा का, इस उंगली का मुसब्बिहा का इशारा करूं और चांद के दो टुकड़े हो जाए, और वाज़े तौर पर चांद अपनी जगह पर रहते हुए एक टुकड़ा उधर हो जाए, एक उधर, और बीच में ये जो पहाड़ी है ना, ये तुम्हें नजर आए, ये तुम्हें नजर आए, तो अपनी जगह पर दो टुकड़े हो जाए मेरी उंगली से, फिर तो मान जाओगे। कहने लगे इससे बढ़कर के बड़ा मौजूदा और क्या होगा। सरकार ने इशारा किया, अल्लाह ने चांद के दो टुकड़े किए। इशारा सरकार का था, टुकड़े करना अल्लाह का काम था। और ये मौजूदा दलील नबूवत होता है। मौजूदा दलील नबूवत क्यों होता है कि जब इन्होंने इशारा किया और इनके इशारे पर अल्लाह ने ये अमल किया, तो इनके इशारे पर किया, मालूम होता है कि अल्लाह ये बतला रहे हैं ये मेरा है, अल्लाह बतला रहे हैं मेरा है। तो जब मेरा होने का जिक्र आ गया तो वो मौजूदा दलील नबूवत बन गया, मौजूदा। तो इस तरह तो कहता है क़यामत नज़दीक आ पहुंची और चांद शक हो गया, ये मौजूदा जाहिर हो गया। और ये लोग अगर मौजूदा देखते हैं तो टाल देते हैं और कहते हैं कि ये जादू है जो अभी खत्म हुआ जाता है। और बड़े फिर वो काफिले वाले भी आए ना, काफिले वालों से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि हमने चांद के दो टुकड़े देखे, हमने क्या देखे, चांद के दो टुकड़े देखे। और ये जादू जो अभी खत्म हुआ जाता है, इन लोगों ने जुटलाया और अपने नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी की और हर बात को करार आ जाता है। और उन लोगों के पास खबरें इतनी पहुंच चुकी हैं कि उनमें इबरत यानी आला दर्जे की दानिशमंदी है, सो खौफ दिलाने वाली चीजें इनको कुछ फायदा ही नहीं देती। तो आप इनकी तरफ से कुछ ख्याल न कीजिए। जिस रोज एक बुलाने वाला फरिश्ता एक नागवार चीज की तरफ बुलाएगा, उनकी आंखें झुकी होंगी कब्रों से, इस तरह निकल रहे होंगे जैसे टिड्डी फैल जाती है। यदि बुला
डराने वाले की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, तो काफिर कहते होंगे ये दिन बड़ा सख्त है। अब इन लोगों से पहले कौम नूह ने जुटलाया था, यानी हमारे बंदे को जुटलाया और कहा कि ये मजनून है, और नूह को धमकी भी दी। तो नूह ने अपने रब से दुआ की कि मैं दरमांदा हूँ, मैं मगलूब हूँ, अल्लाह आप मेरा इंतकाम लीजिए। बस हमने कसरत से बरसने वाले पानी से आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन से भी पानी उबलना शुरू हो गया, जिसका पार में जिक्र आया, और जमीन से चश्मे जारी कर दिए। फिर पानी इस काम के लिए मिल गया, ऊपर का जमीन का जो तजवीज हो चुका था। और हमने नूह को तख्तों पर और मेखों वाली किश्ती पर, जो कि हमारी निगरानी में रवा थी, सवार किया। ये सब कुछ उस शख्स का बदला लेने के लिए किया जिसने 950 बरस जिसने तबलीग की, तो बाद में यह अज़ाब आया जिसकी बेकदरी की गई थी। और हमने इस वाक़े को इबरत के वास्ते रहने दिया, सोचा कोई नसीहत हासिल करने वाला कोई है। फिर मेरा अज़ाब और मेरा डराना कैसा हुआ। और हमने कुरान मजीद को नसीहत हासिल करने के लिए हमने आसान बना दी है। क्या बना दी है? अब देखो ना, इससे बड़ा आसान क्या होगा कि तर्जमा पढ़ते जाओ तो पता चलता है कि अल्लाह क्या फरमाना चाहते हैं कि ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। कहता हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान किया, लेकिन कुरान मजीद में जो बलागत की बहसें हैं, फसाहत की बहसें हैं, तो उनमें इमाम राज़ी 4 लाइनों में 10,000 मसले निकाले, कुरान की आयतों में से निकाले। तो वो इस्तिंबातात और इज्तिहाद जो है वो तो मुश्किल है, लेकिन ज़ाहिरी नसीहत हासिल करने के लिए कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ते जाओ, पता चलेगा अल्लाह पाक कहते हैं ये करो और ये ना करो, ये करो और ये ना करो। और हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया। सो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? आज ने तकदीर की, सो मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। हमने उन पर एक धुंध हवा भेजी, एक हमेशा दवामी नहुसत के दिन में कि वो हवा लोगों को इस तरह उखाड़ उखाड़ कर फेंकती, तौबा तौबा, कि गोया वो उखड़ी खजूरों के तने हैं, क्योंकि कदम इनके बड़े लंबे थे ना। सो मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया। सो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? समूद ने पैगंबरों की तकदीर की जुटलाया, कहने लगे कि हम ऐसे शख्स की पैरवी करेंगे जो हमारी जिन्स का आदमी है और अकेला है, तो इस सूरत में हम बड़ी गलती और जुनून में पड़ जाएंगे कि हम सब में से इसी पर वही नाज़िल हुई है, बल्कि ये बड़ा झूठा और शकी तौबा शकीबाज है। कुरान करीम मालूम हो जाएगा झूठा और शकीबाज कौन था। हम ऊँटनी को निकालने वाले हैं तो पहाड़ फटेगा, ऊँटनी अजीब और गरीब किस्म की निकलेगी उनकी आजमाइश के लिए। सो इनको देखते भागते रहना, सब्र से बैठे रहना, और इन लोगों को ये बतला देना कि पानी बांट दिया गया है, एक दिन ऊँटनी का होगा, वो सारा पी जाएगी कुआं, एक दिन तुम्हारा, हर एक बारी पर बारी वाला हाजिर हुआ करे। इन्होंने अपने रफीक को बुलाया, उसने वार किया और ऊँटनी को मार दिया। सो मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। हमने इन पर एक ही नारा मुसल्लत किया, फरिश्ते की चीख हुई, इनके कलेजे फट गए। सो वह ऐसे हो गए जैसे कांटों की बाढ़ लगाने वाले का चूरा होता है। और हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया। सो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? कौम लूत ने पैगंबरों को झुठलाया, हमने इन पर पत्थरों का मींह बरसाया बजुज मुतअल्लिक़ीन लूत के, कि उनको आखिर शब में हमने बचा लिया अपनी जानब से फजल करके। तो जो शुक्र करता है फिर उसको ऐसे ही सिला दिया करते हैं। और लूत ने उनको हमारी दारोगी से डराया था, तो इन्होंने इस डराने में झगड़े पैदा किए और इन लोगों ने लूत से उनके मेहमानों को बइरादा बद लेना चाहा। सो हमने उनकी आंखें चौपट कर दी कि मेरे अजाब डराने का मजा चखो, और सुबह सवेरे ही उन पर अजाब दायमी आ पहुंचा कि लो मेरे अजाब डराने का मजा चखो। और हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया। सोचा कोई नसीहत हासिल करने वाला है। और फिरौन वालों के पास भी डराने की बहुत सी चीजें थी, इन लोगों ने हमारी तमाम निशानियों को झुठलाया। सो हमने उनको जबरदस्त साहिब कुदरत का पकड़ा
क्या तुम में जो काफिर हैं उनमें इन लोगों से कुछ फजीलत है, या तुम्हारे लिए किताबों में कोई माफी लिख दी गई है, या ये लोग कहते हैं कि हमारी ऐसी जमात है जो मतलब कि गालिब ही रहेंगे, अनकरीब ये जमात शिकस्त खाएगी और फिर फेर करके भागेगी। बल्कि क़यामत का वादा है और क़यामत बड़ी सख्त नागवार चीज है। अब ये देखो ना, ये सूरत मक्की है और जब शेब अबी तालिब में सरकार बंद थे, इतनी तंगी में है जी, बाइकाट हो गया था और जिंदगी गुजार रहे थे, उस वक्त में कुरान मजीद की आयत आई और है जी उमर फारूक कहते हैं मैं हैरान कि इतनी तंगी और ये कह जाए अनकरीब काफिरों का लश्कर शिकस्त खाएगा और पीठ दे करके भागेंगे। तो मुझे ताज्जुब हुआ। तो ग़ज़वा बदर जब हुआ ना, तो ग़ज़वा बदर में जब सरकारें दो आलम और मुसलमानों की जमातें पीछे पीछे भाग रही थी और काफिर आगे आगे भाग रहे थे, सरकार पढ़ते जा रहे थे सयुहज़मुल जमअ व युवल्लूना दुबुर बल साअतु मौइदुहुम व साअतु अदम। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, मैं सरकार तो वहां कह रहे थे और नजर थी बदर पर और मैं समझ रहा था वहां ये देखो सरकार का इल्म, बल्कि क़यामत इनका वादा है और क़यामत बड़ी सख्त और नागवार जी, बड़ी सख्त और नागवार चीज है। ये मुजरिमीन बड़ी गलती और बेअक्ली में है जिस रोज ये लोग अपने मुंहों के बल जहन्नम में घसीटे जाएंगे तो इनसे कहा जाएगा कि दोज़ख के है जी लगने का मजा चखो। हमने हर चीज को है जी अंदाज से पैदा किया और हमारा हुक्म तब ऐसा यकबारगी हो जाएगा जैसे आँख का झपकना होता है ना, इस तरह क़यामत के सारे मामलात को निपटा देंगे और हम तरीका लोगों को हलाक कर चुके हैं। तो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? और जो कुछ भी ये लोग करते हैं सब अमाल नामों में है और हर छोटी और बड़ी बात लिखी हुई है। परहेजगार लोग बागों में और नहरों में होंगे, एक उम्दा मकाम में कुदरत वाले बादशाह के पास। कुदरत सुभान अल्लाह, कुदरत वाले सूरह रहमान बदनी आदि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु एक दफे फरमाया ना कि उसजुदू लिर्रहमान, तो 19वें पारे के 30वें रुकू में आया था कि रहमान को सजदा करो। तो कालू वमर रहमान, कि रहमान कौन है, रहमान किसे कहते हैं? तो अल्लाह ने कहा रहमान ये है और रहमान अल्लम अल कुरान, रहमान ने कुरान की तालीम दी, उसने इंसान को पैदा किया। ये मुफस्सिरीन ने अजीब बात लिखी है कि रहीम कहते हैं बार बार रहमत करने वाले को, रहमान कहते हैं बड़ी बड़ी रहमत करने वाले को। तो अल्लाह ताला ने जब तालीम में कुरान का जिक्र किया तो ये नहीं कहा अल्लाह ने दी, रहीम ने दी, किसी और सिफत का जिक्र नहीं किया। तो बड़ी बड़ी रहमत करने वाले ने सबसे बड़ी रहमत तुम्हारे ऊपर ये की कि तुम्हें कुरान दे दिया, तुम्हें कुरान का। और रहमान अल्लम अल कुरान, और जब कुरान मिला तो गोया इंसान पैदा हो गया और जिसका कुरान से कनेक्शन नहीं, जैसा पहले ये सूरह यासीन शी के पहले आ गया था, वो गोया मुर्दा है, ये काफिर मुर्दे हैं, गोया जिंदा ही। तो तालीम कुरान के बाद इनकी हयात आई, इसको गोयाई सिखलाई सूरज और चांद हिसाब के साथ है और बेतने के दरख्त और तनादार दरख्त दोनों फर्माबरदार हैं और उसी ने आसमान को ऊंचा किया, उसने तराजू रख दी ताकि तुम तोलने में कमी पेशी न करो और इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोल को घटाओ मत। और उसी ने मखलूक के वास्ते जमीन को रख दिया, इसमें मेवे हैं और खजूर के दरख्त हैं जिन पर गिलाफ होता है, इसमें फल भी है और खजूर भी है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या खजूर फल नहीं? ये सवाल होता है कि फल भी है और खजूर भी है, हालांकि फल भी है। तो ये बात ने कहा ना कि फल में खास यानी कुव्वत के एतबार से उसका जिक्र अलग किया और दूसरी बात है कि खजूर खाने में भी आ जाती है। एक होता है फाकिहा तफक्को के तौर पर और एक है बतौर ग़िज़ा की कि उसको खा ले तो रोटी की जरूरत नहीं रहती। तो खजूर को इसे अलग किया और खजूर के दरख्त है जिन पर गिलाफ होता है और अल्लाह से जिसमें भूसा होता है और ग़िज़ा की चीज है। तो अपने रब की ऐ जिन्नों और इंसानों, ये तकरीबन 31 मरतबा इस आयत का जिक्र आया, अपने रब की तुम दोनों किस किस चीज का इनकार करोगे? उसी ने इंसान को ऐसी मिट्टी से जो ठीकरे की थी बजती थी पैदा किया
اور جنات کو آگ سے پیدا کیا، تو اے جن و انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی منکر ہو جائے گی؟ کہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک ہے، سردیوں والی مشرق بھی اور گرمیوں والی مشرق بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ اور ایک آیت میں آتا رب المشارق، مشرقوں کا رب ہے، تو ظاہر بات ہے زمین گول ہے، زمین کیا ہے؟ تو دیکھو نا اس وقت میں کسی جگہ آفتاب غروب کر رہا ہے، کیا ہر آن میں کہیں نہ کہیں غروب کر رہا ہے، اور ہر آن میں کہیں نہ کہیں اس اعتبار سے مشرقیں بھی بن گئی اور مغربیں بھی بن گئی، اور دو مشرق دو مغربیں سردی اور گرمی کے اعتبار سے۔ کبھی ای آلاء ربکما تکذبان، اس نے دو دریاؤں کو ملایا، جیسا 19 پارے میں آ چکا ہے کہ وہاں ملے ہوئے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب ہے کہ دونوں بڑھ نہیں سکتے۔ کبھی ای آلاء ربکما تکذبان، ان دونوں سے موتی اور مونگا برآمد ہوتا ہے۔ کبھی ای آلاء ربکما تکذبان، اور اسی کے ہیں جہاز جو سمندر میں کشتیاں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہیں۔ تو اے جن و انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ جتنے روئے زمین پر موجود ہیں سب فانی ہو جائیں گے، اور آپ کے پروردگار کی ذات ہی باقی ہوگی جو بڑی عظمت اور احسان والی ہے، باقی رہ جائے گی۔ ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، اسی سے سب آسمان اور زمین والے مانگتے ہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، سارے جہان عالم کو چلا رہا ہے۔ اور فبی ای آلاء، اے جن و انسان ان قریب تمہارے لیے ہم خالی رہ جائیں گے۔ فبی ای آلاء ربکما تکذبان، اے گروہ جن اور انسانوں کے، اگر تم کو یہ قدرت ہے نا کہ آسمان اور زمین کی حدود سے باہر نکل جاؤ، اگر قدرت ہے تو نکلو، لیکن تم بدون قوت کے سلطان کے تم نہیں نکل سکتے، یعنی تم نہیں نکل سکتے کیونکہ سلطان ہے ہی نہیں، اس لیے تم۔ لیکن بعضوں نے کیا کہا کہ بغیر سلطان کے تم نہیں نکل سکتے، لیکن اگر سائنس نے اتنی ترقی کی اور وہ سلطان آ گیا تو اگر تم نکلنا چاہو گے تو نکلنے کے لیے اللہ تمہیں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہ معنی بھی اس مغفب ای آلاء ربکما، کہ تم دونوں پر آگ کا شعلہ دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم ہٹا نہ سکو گے۔ جن و انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اگر جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور ایسا سرخ ہو جائے گا جیسا سرخ نری، کبھی ای آلاء، تو اس روز کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ بحث 8ویں پارے میں گزر چکی تھی، وہ یہ کہ ہم امتوں سے بھی پوچھیں گے اور نبیوں سے بھی، اور یہاں آیا کسی سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو میں نے وہاں یہ تشریح کی تھی کہ پوچھا نہیں جائے گا کا معنی یہ، ہمیں تو خود پتا ہے، ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اس معنی میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اور یہ کہ ہم پوچھ کریں گے یعنی پکڑ کریں گے، ہم اس کو کیا کریں گے، تو وہاں پوچھنے کا معنی اور ہے یا معنی اور ہے۔ ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، مجرم لوگ اپنے حلیے سے پہچانے جائیں گے۔ سہدی تو کہتے ہیں کہ فیوخذ، سر کے بال اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے اور جہنم کے گڑھے میں ان کو ڈالا جائے گا۔ ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یا اللہ، یا سر کے بالوں سے اور پیروں سے پکڑ کے جہنم میں ڈالنا یہ بھی نعمت ہے کہ آپ کہتے ہیں کبھی ای آلاء ربکما تکذبان؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ تو اگر یہ جہنم میں پکڑ کے ڈالنا یہ تو نعمت نہیں، ڈالنا وہ تو جہنم پہ پڑیں گے، نعمت نہیں، لیکن اس کا ذکر نعمت ہے، کیونکہ جب یہ ذکر کیا کہ مجرموں کو ایسا کیا جائے گا، جب ایسا کیا جائے گا تو سننے والے سن کر کے ڈریں گے، اور جب ڈریں گے تو نیک کام کریں گے، اور جب نیک کام کریں گے تو جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے یہ نعمت بن گیا۔ تو اگر یہ جہنم میں ڈالا جانا تو نعمت نہیں، لیکن اس کا ذکر جو کہ ڈرائے اور گناہوں سے بچائے اور جنت والے کام کروائے اور جنت میں پہنچائے، اس اعتبار سے یہ نعمت بن گیا۔ فبی ای آلاء ربکما تکذبان، آج باتیں یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، وہ لوگ دوزخ اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان دورہ کرتے ہوں گے۔ فبی ای آلاء، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہو، یعنی ایک دن آئے گا کہ رب کے سامنے میں کھڑا ہوں گا،
ذرا سارا کچا چٹھا سارا سامنے آ جائے گا جو ڈرے. سو اے جن و انسان اعلیٰ کہتے ہیں دونوں باغ بڑے کسی شاخوں والے ہوں گے. ان کو دو باغ ملے گی اور دونوں باغ بڑے کسی شاخوں والے ہوں گے. بھلے من خافا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کو دو باغ ملیں گے اور بڑی شاخوں والے. فبأي آلاء ربكما تكذبان ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے جو بہتے ہی چلے جائیں گے. فبأي آلاء اور ان دونوں باغوں میں ہر حال میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ لوگ تکیہ لگائے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر طبیعت ریشم کے ہوں گے اور ان دونوں باغوں کا پھل بہت نزدیک ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں نیچی نگاہ والیاں ہوں گی. ان لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے اس انداز میں صاف ستھری اور اتنی حسینہ اور جمیلہ. فبأي آلاء بعد ہے جی غایت کہتا بلا غایت اطاعت کا بدلہ بجد غایت عنایت کے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. بلا غایت عنایت کا بدلہ بجد غایت عنایت کے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان ان دونوں باغوں سے کم درجے میں بھی دو باغ ہیں. یعنی فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ دونوں باغ غیر سبز ہوں گے. فبأي آلاء ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے جو جوش مارتے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان اور اگر بات ان دونوں باغوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے. فبأي آلاء اور ان میں خوبصورت عورتیں ہوں گی. فبأي آلاء یہ حوریں ہوں گی اور جی گوری رنگت کی ہوں گی خیموں میں محفوظ ہوں گی. فبأي آلاء ربكما ان لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا نہ کسی جن نے. فبأي آلاء وہ لوگ سبز مشجر عجیب خوبصورت کپڑوں میں اچھا تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. فبأي آلاء بڑا بابرکت ہے نام آپ کے رب کا جو بڑی عظمت والا اور احسان والا ہے. سورہ واقعہ مکیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب قیامت واقع ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد سرکار نے فرمایا اگر کوئی یہ پڑھ لیا کرے تو رزق کی تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے. کہتے ہیں جب قیامت واقع ہوگی جس کے واقع ہونے میں کوئی خلاف نہیں تو بعضوں کو پست کر دے گی بعضوں کو بلند کر دے گی. جبکہ زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جس کا ذکر سورہ بارے میں آیا نا کہ روئی کی طرح اڑتے ہوں گے. وہ بڑا گندا غبار ہو جائیں گے اور تم تین قسم کے لوگ ہو جاؤ گے. ایک میمنہ والے اور ایک دوسرے اور ایک یعنی مقربون. سو جو دانے والے ہیں وہ دانے والے کیسے اچھے ہیں اور جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کتنے برے ہیں اور جو اعلیٰ درجے والے ہیں السابقون السابقون یہ تو مقربون بہت ہی اللہ کی بارگاہ کے قریب. یہ لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے. ان کا ایک بڑا گروہ تو اگر لوگوں میں سے ہوگا یعنی صحابہ کے دور میں مقربون زیادہ تھے امت کے پہلے طبقے میں زیادہ تھے اور بعد میں مطلب یہ وہ کم ہوئے اور یہ تھوڑے جی وقلیل اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے. یعنی مقربون پہلی صف میں صحابہ کے دور میں مقربون زیادہ تھے اور بعد میں یہ کم ہوں گے. وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے زربفت کے فرش ہوں گے. نعمتوں تکیہ لگے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے چیزیں لے کر کے عام درست کریں گے. یعنی چیزیں لانے والے بھی کتنے صاف ستھرے آب خورے اور آفتابے اور آب ہے جی ایسا جامع شراب جب بہتی شراب سے بھرا جائے گا ہے جی نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا. اور میوے جن کو وہ مطلب کہ پسند کریں گے جن میووں کو پسند کریں گے وہ ملے گا اور ان کو پرندوں کا گوشت بھی ان کو ملے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں بھی ان کو ملیں گی جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی. اچھا یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا. وہاں نہ بک سنیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا اللہ تعالیٰ ان میں اتنا حسن دے گا اتنا حسن کہ وہ حوروں کو بھی کیا ہوگی
सरदार होंगी। तो वहाँ न बकबक सुनेंगे न कोई बेहुदा बात, बस सलाम ही सलाम की आवाज आएगी। और जो दाने वाले हैं वो दाने वाले कैसे अच्छे हैं, वो इन बागों में होंगे जहाँ बेखार बेरियां होंगी और तय बता केले होंगे और लंबा लंबा साया होगा और ये जी चलता हुआ पानी इनको मिलेगा और कसरत से मेवे होंगे। और बाकी आप ये जो सवाल असल करने वाला था ना, वो ये कि मर्दों को तो बीवियां भी मिल गई, हूरें भी मिल गई, तो ये जो बीवियां औरतें हैं जो बेवा होकर या वैसे जिनकी शादियां नहीं हुई, तो उन बेचारों को क्या मिलेगा? तो उनको अल्लाह कहते हैं जो जन्नती चाहेगा वो मिलेगा। इसमें सब कवर हो गया, इसमें सब सारी बातें कवर होगी। और तय पता केले भी होंगे, लंबा लंबा साया होगा और चलता हुआ पानी होगा और कसरत से मेवे होंगे जो न खत्म होंगे न उनकी रोक टोक होगी और ऊंचे ऊंचे फर्श होंगे। हमने इन औरतों को खास तौर पर बनाया है, यानी हमने इनको ऐसा बनाया कि वो कमालियां हैं, महबूबा है, हम उम्र है। ये सब चीजें दाने वालों के लिए है। इनका एक बड़ा गिरोह अगले लोगों में से होगा और एक बड़ा गिरोह पिछले लोगों में से। मैं कहता हूँ अब ये जो सूरह रहमान में या वाक़े में जन्नत का एक नक्शा खींचा और आगे सूरत आ रही है सूरह दहर, उसमें जो जन्नत का नक्शा खींचा है, तो अभी जब सोचता है कि जन्नत में ये मिलेगा और अरबों खरबों साल कहीं नहीं, वहां मतलब हमेशा के लिए मिलेगा, तो ऐसे प्यारे जहान को, ऐसी प्यारी नेमतों को कुर्बान करके इस मिट्टी गारे की खातर हम उन्हें कुर्बान करें, तो हमसे ज्यादा कोई अहमक और बेवकूफ हो सकता है? अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमाए, अल्लाह हमें सलीम अता फरमाए। हमने इन औरतों को खास तौर पर बनाया है, यानी अबकारा है, कवारियां हैं, और यानी इतनी वाज़ेह बात है लेकिन हमारी समझ में नहीं आती। गफलत के पर्दे पड़े हुए, इनका एक बड़ा गिरोह बड़े लोगों में से होगा, पहले लोगों में होगा, और एक बड़ा गिरोह पिछले लोगों में से। और जो बाएं वाले हैं वो बाएं वाले कैसे बुरे हैं, वो लोग आग में होंगे खौलते हुए पानी में, और है जी और जिल्ल और साया में होंगे जी, जिल्ल में यामूमन, और गर्मी के अंदर मतलब के इनका होगा स्याह धुएं के साये में, ना ठंडा है जी होगा, फर्ज बख्श होगा। और वो लोग उसके कबल बड़ी खुशहाली में रहते थे और बड़े भारी गुनाह पर इसरार किया करते थे, शिर्क पर, और यूं कहा करते थे जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां रह गए तो क्या हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे, और क्या हमारे अगले बाप दादा भी आप कह दिए सब अगले और पिछले जमा किए जाएंगे एक मुअय्यन तारीख के वक्त पर, कि तुमको अब है गुमराहो जुटलाने वालों, ये दरख्त ज़क़ूम से तुम्हें खाना होगा, फिर उससे पेट भरना होगा, फिर इस पर खौलता हुआ पानी पीना होगा, फिर पीना भी प्यासे ऊँटों का सा होगा। इन लोगों की क़यामत को रोज ये दावत होगी, हमने तुमको पैदा किया है, तो फिर तुम तस्दीक क्यों नहीं करते हो? अच्छा ये बतलाओ, सारी दुनिया वालों तुम बतलाओ कि तुम जो वो मादा मनी पहुंचाते हो, इसको मतलब कि जो मादा मनी का तुमने पहुंचाया, कहते इसको तुमने आदमी बनाते हो, पैदा करते हो, या हम बनाते हैं? हम ही तुम्हारे दरमियान में मौत को हमने ठहरा रखा है, और हम इससे आजिज नहीं है कि तुम्हारी जगह पर और तुम जैसे पैदा कर दें और तुमको ऐसी सूरतें बना दें जिनको तुम जानते भी नहीं, और तुमको अव्वल पैदाइश का इल्म हासिल है, फिर तुम क्यों नहीं समझते? सारी दुनिया वालों बतलाओ। अच्छा ये बतलाओ, तुम जो कुछ बोते हो ना जमीन में, गंदम का दाना, ये तुमने डाल दिया, अब तुम्हें तो पता नहीं कि दाना किस हालत में से गुजर रहा है, तो तुम्हें तो इल्म ही नहीं। तो जिसको इल्म ना हो वो खालिक कैसे होगा? तो खालिक तुम जो बोते हो इसको तुम उगाते हो या हम उगाने वाले? अगर हम चाहें तो इसको चूरा चूरा कर दें, फिर तुम मुताजिब होकर के रह जाओ कि हम पर तावान ही पड़ गया, बल्कि बिल्कुल ही महरूम रह गए। अच्छा ऐ दुनिया वालों ये बतलाओ कि जिस पानी को तुम पीते हो इसको बादल से तुम बरसाते हो या हम बरसाने वाले हैं? अगर हम चाहें इसको कड़वा कर डालें तो तुम शुक्र क्यों नहीं करते? अच्छा फिर ये बतलाओ कि जिस आग को तुम सिलकाते हो इसके दरख्त को तुमने पैदा किया है या हम पैदा करने वाले हैं? हमने इसको याद दहानी की चीज और मुसाफिरों के फायदा की चीज बनाया है, तो अपने अजीम शान परवरदिगार के नाम की तस्वीर कीजिए। मैं कसम खाता हूँ सितारों के छुपने की
और अगर तुम गौर करो तो ये एक बड़ी कसम है कि ये एक मुकर्रम बड़ी इज्जत वाला कुरान है जो एक महफूज किताब में दर्ज है। इसको बजुज़ पाक फरिश्तों की कोई नापाक हाथ इनको नहीं लगा सकता, इसलिए बावुज़ू कुरान को हाथ लगाएंगे बेवुज़ू। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ है, तो क्या तुम लोग इस कलाम को सरसरी बात समझते हो और तकदीब को अपनी ग़िज़ा बना रहे हो? तो जिस वक्त रूह जी मुअल्लक़ हो जाती है, हलक़ों तक आ जाती, हलक़ तक ऊंची आती है और तुम इस वक्त तका करते हो और हम उस शख्स के तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं, लेकिन तुम समझते नहीं हो। तो अगर तुम्हारा हिसाब किताब होने वाला नहीं है तो तुम इस रूह को फिर क्यों नहीं लौटा करके ले आते अगर तुम सच्चे हो? फिर जो शख्स मुक़र्रबीन में से होगा उसके लिए तो राहत है और ग़िज़ाएं हैं, आराम की जन्नत है। और जो शख्स दाने वालों में से होगा तो उससे कहा जाएगा कि तेरे लिए अमन और अमान है कि तू दाने वालों में है। और जो शख्स जुटलाने वाले गुमराहों से होगा तो खौलते हुए पानी से उसकी दावत होगी और दोज़ख में दाखिल होना होगा। बेशक ये तहकीकी यकीनी बात है। तो अपने अजीम शान परवरदिगार के नाम की तस्बीह कीजिए। तो जब रुकू में जाते हैं ना तो सुभान रब्बियल अज़ीम और सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, जब वो हुआ तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह की पाकी बयान करते हैं सब जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो जबरदस्त हिकमत वाला उसी की सल्तनत है। आसमानों और जमीन की वही जिंदा करता है, वही मारता है, वही हर चीज पर कादिर है। वो सबसे अव्वल भी वही, सबसे आखिर भी वही, सबसे जाहिर भी वही, सबसे बातिन भी वही है। जी हमें कागज पर कितनी चीजें नजर आ रही है। आप कहेंगे जी ये नकूश नजर आ रहे हैं, एक दफा बजिकाने लगे कि ये क्या कागज भी तुम्हें नजर आ रहा है? जी ये नकूश है, कागज है, ये नजर आ रहा है कि ये कागज ही है, नकूश है। कहता नहीं, इस पर जो रोशनी पड़ी है ना वो रोशनी इतनी वाज़ेह है कि वजाहत की वजह से तुम भूल गए उसका नाम लेना। इसी तरह अल्लाह ताला पोशीदा भी सबसे ज्यादा और जाहिर भी सबसे ज्यादा है और ज्यादती ज़हूर उनका मनशे खफा बन गया। और वो ऐसा है कि उसने आसमानों और जमीन को 6 रोज की मिक़दार में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। वो सब कुछ जानता है जो जमीन के अंदर दाखिल होती है और जो चीज उसमें से निकलती है और जो चीज आसमान से उतरती है और जो चीज उसमें चढ़ती है। वो तुम्हारे साथ रहता है खा तुम लोग कहीं भी हो, और वो तुम्हारे सब अमाल को भी देखता है। उसी की सल्तनत आसमान और जमीन को, जमीन की और अल्लाह की तरफ सब उमूर लौट करके जाएंगे। कोई रात को दिन में दाखिल करता है, दिन बड़ा हो गया, कोई दिन को रात में दाखिल करता है और वो दिल की बातों को जानता है। तुम लोग अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाओ और जो माल समझे करनी और जिस माल में तुमको उसने दूसरों का कायम मकाम बनाया है उसमें से खर्च करो। तो जो लोग तुम में से ईमान ले आए समझे करनी और खर्च करें उनको बड़ा सवाब होगा। और तुम्हारे लिए इसका कौन क्या सबब है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि रसूल तुमको इस बात की तरफ बुला रहे हैं कि तुम अपने रब पर ईमान लाओ। और खुद खुदा ने तुमसे अहद लिया था अगर तुम ईमान लाना हो। वो ऐसा है कि अपने बंदों पर साफ साफ आयतें भेजता है ताकि वो तुमको तारीकियों से रोशनी की तरफ लाए। और बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे हाल पर बड़ा शफीक मेहरबान है। और तुम्हारे लिए इसका क्या सबब है कि तुम अल्लाह के नाम में खर्च नहीं करते, हालांकि सब आसमान और जमीन आखिर में अल्लाह ही करा जाएगा। तो जो लोग फतह मक्का से पहले खर्च कर चुके हैं इन्हें कहते हैं ना पहले जो ईमान लाए, साबिकून पहले ईमान वाले कर चुके हैं, वो बराबर नहीं हो सकते जो बाद में ईमान लाए। वो लोग दर्जा में उन लोगों से बड़े हैं जो उन्होंने बाद में खर्च किया और लड़े। और अल्लाह ताला ने भलाई का वादा बाकी सबसे कर रखा है, लेकिन अव्वल नंबर में वो जो मक्का में ईमान लाए। अल्लाह ताला को अरे तुम्हारे सब अमाल की पूरी खबर है। कौन है जी? कोई शख्स है जो अल्लाह
अल्लाह ताला को अच्छी तरह कर्ज के तौर पर दे, फिर खुदा ताला उसको उस शख्स के लिए बढ़ाता चला जाए, समझेगा नहीं, और बढ़ा जाए, और उसके लिए अजर पसंदीदा है। जिस दिन आप मुसलमान मर्दों मुसलमान औरतों को देखेंगे कि इनका नूर पुरसरात पर इनके आगे आगे उनके दौड़ता होगा। आज तुमको बशारत है ऐसे बागों की जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। जिस रोज मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मुसलमानों से कहेंगे हमारा इंतजार करो ऐ पुरसरात पर नूर की रोशनी में जाने वालों, जरा हमारा इंतजार तो कर लो कि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें। इनको जवाब दिया जाएगा तुम अपने पीछे लौट जाओ, फिर रोशनी तलाश करो। फिर इनके दरमियान में एक दीवार कायम कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा, उसके अंदरूनी जानब में तो रहमत जन्नत होगी और बैरूनी जानब की तरह अजाब जहन्नम। ये उनको पुकारेंगे तो क्या हम तुम्हारे साथ न थे? और वो कहेंगे थे तो थे ही तुम हमारे साथ, लेकिन तुमने अपने को गुमराही में फंसा रखा था। तुम मुंतज़िर रहा करते थे और तुम शक किया करते थे और तुमको तुम्हारी बेहुदा तमन्नाओं ने धोखे में डाल रखा था, यहाँ तक कि तुम पर खुदा का हुक्म आ पहुंचा और तुमको धोखा देने वाले ने अल्लाह के साथ धोखा में डाल रखा था। और आज न तुमसे कोई मुआवजा लिया जाएगा न काफिरों से, तुम सबका ठिकाना दोज़ख है, वही तुम्हारा रफीक है और वो है जी और बुरा ठिकाना है। क्या ईमान लाने का ईमान वालों के लिए अभी तक वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल नरम हो जाएं और ये शरीयत को और ईमान को मान लें कि जो दीन हक नाज़िल हुआ है और उसके सामने झुक जाएं? क्या अभी तक इनके दिल नरम नहीं हुए और इन लोगों की तरह न हो जाएं कि जिनको इनके कब्ल किताब मिली थी, फिर इन पर एक जमाना दराज गुजर गया, फिर इनके दिल सख्त हो गए और कौन से आदमी इनमें के काफिर हैं? ये बात जान लो, अल्लाह ताला जमीन को उसके खुशबू के पीछे जिंदा कर देता है। हमने तुमसे जी तुम्हारे नज़ायर बयान कर दिए ताकि तुम समझो। बिलाशुबा सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और ये अल्लाह का जी खुलूस के साथ कर्ज दे रहे हैं, वो सदका उनके लिए बढ़ा दिया जाएगा और उनके लिए अजर पसंदीदा। और जो लोग अल्लाह पर उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं ऐसे लोग अपने रब के नज़दीक सिद्दीक और शहीद हैं, इनके लिए इनका अजर और इनका नूर होगा। और जो लोग काफिर हुए वो हमारी आयतों को जुटलाया करते थे, यही लोग दोज़खी हैं। तो क्या एक रुकू का वक्त नहीं है? 10 मिनट है। अब आप जरा जल्दी कर रहे हैं ना, तो ऐसी बात न किएगा, वो नफ्सियाती असर पड़ता है। अच्छा तुम खूब जान लो कि दुनियावी हयात महज लहव लैब और जीनत और बाहम एक दूसरे पर फख्र करना है और अमवाल और औलाद में एक दूसरे से अपने आप को ज्यादा बतलाना है। जैसे मीम बरसेगी उसकी पैदावार काश्तकारों को अच्छी मालूम होती है, फिर वो खुशक हो जाती है, तो इसको तो जर्द देखता है, फिर वो चूरा चूरा हो जाती है और आखिरत में अज़ाब शदीद है और खुदा की तरफ से मग़फ़िरत मिलेगी और रज़ामंदी मिलेगी और दुनियावी जिंदगानी महज धोखा की असबाब। अल्लाह हमें ये समझ दे दे। तुम अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी वसअत तुम्हारे समझाने के तौर से हम कह रहे हैं आसमान और जमीन की वसअत के बराबर है। वो उन लोगों के वास्ते तैयार की गई है जो अल्लाह पर उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं। ये अल्लाह का फजल है, वो अपना फजल जिसको चाहे इनायत करे। अल्लाह बड़े फजल वाला है। कोई मुसीबत न दुनिया में आती है न खास तुम्हारी जानों में, मगर एक किताब में वो लिखी हुई है खबर इसके हम जानों को पैदा करें। ये अल्लाह का नज़ीर आसान काम है ताकि जो चीज तुमसे जाती रहे तुम उस पर रंज न करो कि तकदीर में ये लिखा था, और ताकि जो चीज तुमको अता फरमाई हो उस पर भी तकब्बुर न करो, ये तो अल्लाह ने पहले से मुक़द्दर कर रखी थी। अल्लाह ताला किसी इतराने वाले शकी बात को पसंद नहीं करते जो ऐसे हैं कि खुद भी बुखल करते हैं, दूसरे लोगों को भी बुखल की तालीम करते हैं। जो शख्स मुंह मोड़ेगा तो अल्लाह ताला बेनियाद है, सजावार हमद है। हमने ये वही आयत आगे जिसका मैं जिक्र करता था, हमने अपने पैगंबरों को खुले खुले अहकाम देकर भेजा और हमने इनके साथ किताब को और इंसाफ करने को नाजिल किया। क्यों नाजिल किया कुरान को? ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो जाए।
معلوم ہوتا ہے یہ قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ معاشرے میں انصاف پر لوگوں کو قائم کرے، اور ہم نے لوہے کو پیدا کیا تاکہ جو بات نہ مانے ان کو لوہے سے بھی سزا دی جائے۔ شدید ہیبت ہے، اور لوگوں کے اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ بے دیکھے اس کے رسول کی کون مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قوی اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، ہم نے ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، اس میں لوگوں کے بعض تو ہدایت یافتہ ہیں اور بعض میں نافرمان تھے۔ پھر ان کے بعد رسولوں کو یکے بعد دیگرے بھیجتے رہے۔ ان کے بعد عیسی بن مریم کو بھیجا، ہم نے ان کو انجیل دی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور ترحم کو پیدا کر دیا۔ انہوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کر لیا تھا کہ جنگلوں میں جاؤ اور بوٹیاں کھاؤ اور یہ شادیاں بھی نہ کرو، ہم نے ان پر اس کو واجب نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے اس کو اختیار کیا تھا۔ جیسے بدھ مذہب والے تو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا اجر دیا، اور زیادہ ان میں نافرمان ہے۔ اے ایمان رکھنے والوں، یعنی اے یہود و نصارہ جو دعویٰ ایمان کا کرتے ہو، اللہ سے ڈرو اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ پیغمبر پر، اللہ تم کو اپنی رحمت سے دوہرا اجر دیں گے۔ جو 20 پارے بحث آئی ہے نا، ان کو 20 گنا ملے گا، اور تم کو ایسا نور عنایت کرے گا کہ تم اس کو لیے ہوئے چلتے پھرتے رہوگے، اور تم کو بخش دے گا۔ اللہ غفور رحیم ہے، تاکہ اہل کتاب کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ ان لوگوں کو اللہ کے فضل کے سے کسی جز پر بھی دسترس نہیں، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی امت کے لیے اللہ جی ہمیں دے دیں، اور جن شروں سے پناہ پکڑی اسے یا اللہ ہمیں ساری امت کو بچا لے۔ اور یہ جو بچہ شہید ہوا ہے 5 بہنوں کا ایک ہی بھائی، اللہ ان کو بھی صبر کی ہمت دے، اور جتنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ہمیں ان کی مرادیں پوری فرما، آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔